Hi dear students, myself Pooja Patwar and today we are going to read our chapter number 13 from the book English Treasure. The name of the chapter is Three Letters and it is coming under the unit communication. So in this chapter we'll be reading three different letters which have been written by famous personalities. Here we are having actually four letters. Three are from the famous personalities and one is the letter that is containing the questions. So first of all there is warm up. There is something in this box and it is having some code over here, so you will have to decode it. If you are able to decode, please do send me the replies. I'll be waiting for that. I'll be waiting for your comments. And if you are able to decode this message. So next we are having list any five means of modern communication. So what are the five means of modern communication? Please do write in your book over there. And next is discuss their advantages and disadvantages. So what we are having disadvantages of these modern communications के जो means हैं and what are their disadvantages we can discuss in our class. So let's move to the reading of the chapter now. Yes, so for a long time, letter was the only reliable means of communication between two people far away from each other. So, reliable means trustworthy. So, here the writer is saying that पहले क्या होता था, पहले ओनली जो लेटर्स होते थे वही ट्रस्टवर्दी होते थे, उन पे ही मतलब उनके थ्रू ही दो लोगों जो दूर के बीच में कम्युनिकेशन हो सकता था. ठीक है. एज अ रिजल्ट देयर वाज अ वेल्थ ऑफ फेमस लेटर्स अवेलेबल टू अस फ्रॉम डिफरेंट एराज ऑफ हिस्ट्री. तो इसी वजह से हमारे पास बहुत सारे फेमस लेटर्स पड़े हुए हैं जो कि हिस्ट्री के अलग अलग टाइम में से हैं. एराज हो गए युग, ठीक है, टाइम्स. सो ऑल दो विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी द रोल ऑफ लेटर्स हैज बिन रिड्यूस. तो जब अब से टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट हो गई है, मतलब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगी है, बहुत ज़्यादा उसकी प्रोग्रेस हो रही है, तो लेटर्स का जो रोल है वो कम हो गया है. दे स्टिल होल्ड एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन कम्युनिकेशन, बट अभी भी उनका बहुत ज़्यादा बड़ा रोल है. लेट अस नो नाउ read letters written by these three significant personalities of the 20th century. So ये थ्री लेटर्स हैं जो कि 20th सेंचुरी के फेमस पर्सनालिटी ने लिखे थे. वी विल रीड एंड वी कैन हैव एन इनसाइट ऑफ देयर थिंकिंग. सो फर्स्ट इज it is written by M.K. Gandhi, our father of nation, Mahatma Karamchand Gandhi. So what makes you think I hate the British? So this is the title, or you can say subject of the letter. So Fred Campbell, a resident of Kansas City, United States, wrote a letter to M.K. Gandhi alleging that Gandhi hated the British. तो उन्होंने जो फ्रेड कैम्पबेल है उन्होंने जो कि कैंसास सिटी में रहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स में रहते थे, उन्होंने ये लेटर M.K. गांधी को लिखा था. एलिजिंग मीन्स एक तरह से दोष लगाना कि जो गांधी जी हैं वो ब्रिटिशर्स को हेट करते हैं, नफरत करते हैं, राइट. Gandhi wrote back this insightful letter in 1925 responding to the allegation. और उन पे जो ये इल्ज़ाम लगाया था उन्होंने ये insightful letter उनको लिखा था. insightful क्या होता है? एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखने वाला, बहुत ज़्यादा अंदर झांकने वाला. तो ऐसा लेटर उन्होंने लिखा था. उस ये जो उन्होंने फ्रेड कैम्पबेल ने उनको लेटर लिखा था उनके दोष को, उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर देने के लिए. सो द डेट इज़ मैंशनड ओवर हियर 26 जुलाई 1925. माय डियर यंग फ्रेंड, so as you are taught how to write a letter, you can see here first of all we are writing the date. It was written in 26 July 1925, and then he is saying, my dear young friend, I like your frank and sincere letter for which I thank you. Frank means openly किसी को मुंह पे बोलना, right? So you seem to have taken it for granted that I hate the British. तो वो कहते कि आपको ये शायद ये गलत फहमी हो गई है, आप शायद ये उसको कुछ और ही मान रहे हो कि मुझे ब्रिटिशर्स को से नफरत है. What makes you think so? I have hundreds of friends among the British people. Now he is saying, M.K. Gandhi is saying that I am having many friends among the British people also. It's not like that कि Britishers मेरे friends नहीं हैं. British लोगों में से भी बहुत सारे मेरे friends हैं.
I cannot love the Muslims and for that matter the Hindus if I hate the British. कहते हैं अगर मैं ब्रिटिशर्स को हेट करूँगा तो इस तरह से तो मैं ना मुसलमानों को प्यार कर सकता हूँ और ना ही हिंदुओं को प्यार कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हिंदू और मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश में भी रहते हैं, राइट. माई लव इज़ नॉट एन एक्सक्लूसिव अफेयर. एक्सक्लूसिव मीन्स किसी एक का, तो मेरा जो प्यार है वो किसी एक का नहीं है, राइट. इफ़ आई हेट द ब्रिटिश टुडे आई वुड हैव टू हेट द मुसलमान्स टुमारो एंड द हिंदूज डे आफ्टर. अगर मैं ब्रिटिशर्स को आज नफ़रत करता हूँ तो कल मैं मुसलमानों को करूँगा और मैं परसों क्या करूँगा, हिंदूज़ को नफ़रत करूँगा. वट I do detest is the system of government that the British have set up in my country. So he is saying detest means dislike. तो अब जो चीज़ है, जो जिस चीज़ को मैं डिसलाइक करता हूँ वो ये है कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मेरी कंट्री में, मेरे देश में शुरू किया हुआ है. इट हैज़ ऑलमोस्ट brought the economy and moral ruin ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया. तो इसने क्या किया, मेरे जो देश के लोग हैं, मेरे भारत के जो लोग हैं, उनको इकोनॉमिकली पैसों से उनको कमज़ोर कर दिया है और मॉरली भी वो मतलब बर्बाद कर दिया. र्यून मीन्स बर्बाद करना, तो इकोनॉमिकली एंड मॉरली दोनों तरह से उनको बर्बाद कर दिया है. क्योंकि एज यू हैव ऑलरेडी रेड अबाउट हिस्ट्री, आपने हिस्ट्री में पढ़ा ही होगा कि ब्रिटिशर्स से उन्होंने प्लंडर किया, इंडिया को बहुत ज़्यादा प्लंडर किया एंड दे डिड मैनी ऑफ द थिंग्स एंड दे जस्ट जो अच्छी चीज़ें थी दे एक्सपोर्टेड टू their country and imported the countries, imported the things और उस पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगाते थे, राइट. सो इस तरह से दैट्स वाई ही सेइंग कि उन्होंने जो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मेरी देश की कंट्री, मेरी कंट्री के जो इकोनॉमिक सेटअप है, मॉरल सेटअप है लोगों का, वो बहुत ज़्यादा वीक कर दिया है. बट जस्ट एज आई लव माई वाइफ एंड चिल्ड्रन इन स्पाइट ऑफ देयर फॉल्ट्स विच आर मैनी, I also love the British in spite of the harsh system for which they have unfortunately made themselves responsible. So he is saying कि जैसे बट चाहे ये सारी चीज़ें हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, मेरी वाइफ है, उनमें बहुत सारे दोष हैं, ठीक है, फिर भी उनको मैं प्यार करता हूँ. ऐसे ही ब्रिटिशर्स ने जो मेरी कंट्री में हार्ड सिस्टम शुरू किया है और जिसके लिए वो पता नहीं अनफॉर्चुनेटली जानबूझ के या गलती से उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए हैं, इवन देन आई लव द ब्रिटिशर्स. दैट लव विच इज़ ब्लाइंड इज़ नो लव. और कहते जो इसे कहते होते हैं कि प्यार अंधा होता है, कहते जो प्यार अंधा होता है वो प्यार नहीं होता. दैट लव विच शट्स इट्स आइज टू द फॉल्ट्स ऑफ लव्ड वन इज़ पार्शियल एंड इवन डेंजरस. और वो प्यार जो अपने प्यारों की गलतियों को देख के आंखें बंद कर ले, वो भी अच्छा प्यार नहीं होता, वो पार्शियल होता है और इवन ख़तरनाक होता है. यू मस्ट राइट अगैन इफ़ दिस लेटर डज़ नॉट सेटिस्फाई यू. तो उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा लेटर लिखना अगर इस लेटर से तुम्हें तसल्ली ना हो. तो ये सेइंग कि मेरा जो लव है वो प्योर है आप लोगों के लिए. जहाँ पे आपकी गलतियाँ हैं मैं उनको भी बताऊँगा, जहाँ पे आप अच्छा काम कर रहे हो तो उनको भी बताऊँगा. अगर मैं पार्शल हो जाऊँ, अगर मैं अपने प्यार में ऐसा अंधा हो जाऊँ कि आपकी गलतियों को मैं नज़रअंदाज करूँ, तो वो प्यार नहीं है, वो इनफैक्ट ख़तरनाक प्यार है, ठीक है. तो वो हमारे लिए, सभी के लिए ख़तरनाक होएगा. So in the last he is saying, writing, yours sincerely, signed M.K. Gandhi. So this was the letter written by M.K. Gandhi. Next is, thank you, Mr. Hitchcock. So in March 1962, Alfred Hitchcock visited a school on his way to Bodega Bay, California, United States, where he was filming The Birds. तो जो हिचकॉक थे वो फिल्म में काम कर रहे थे द बर्ड्स में, तो उसकी शूटिंग के लिए वो जा रहे थे. तो उनके रास्ते में एक स्कूल आया. वो कहाँ जा रहे थे, बोदका बे, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स में. वहाँ पे जाके वो फिल्म कर रहे थे द बर्ड्स. रास्ते में उनके एक स्कूल आया और उस स्कूल में वो गए. The principal, Duncan Coleman, wrote this letter to Hitchcock, thanking him for his visit and describing how it helped to uplift the spirits of a shy child. तो एक बच्चा था, वो बहुत ज़्यादा शर्मीला था, किसी से अपनी बातें शेयर नहीं करता था. तो जो हिचकॉक थे वो उनके स्कूल में जब विज़िट किए तो उस बच्चे का जो कॉन्फिडेंस था वो बहुत ज़्यादा राइज़ हो गया. तो उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे डंकन कॉलमैन, उन्होंने हिचकॉक को ये लेटर लिखा उनको थैंक करने के लिए, उस शाई चाइल्ड की स्पिरिट्स को हाई करने के लिए. लेट अस स्टार्ट रीडिंग नाउ.
विमल विल्मर यूनियन स्कूल डिस्ट्रिक्ट 3675 Bodica Highway, Petaluma, California. So this is the address of the school. Now date is 3 April 1962. Mr. Alfred Hitchcock Productions, Vodka Bay, California. So this is the address. Wait. So here is the address of this is the address of the school. Okay, so this is the letter this is the address of the sender or the school. This is the address of the receiver. तो जिसको ये रेसर जिसके पास ये लेटर जाना था उसका ये एड्रेस है. Dear Mr. Hitchcock, I wanted to take the time to say that you're stopping one morning on our way to Bodka Bay to give a group of children a drawing and autograph of you was certainly a deed of thoughtfulness. So he is saying कि आपने उस दिन जब आप बोधका बे जा रहे थे तो आप रास्ते में स्कूल पे खड़े हुए स्कूल के पास एक सुबह उस और वहाँ पे खड़े होकर ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन को आपने ड्राइंग दी और अपनी ऑटोग्राफ दी, जिससे कि बहुत अच्छा काम है, मतलब विचार करने लायक काम है, आपने बहुत अच्छा काम किया है. इट इज़ रियलाइज दैट टेकिंग टाइम फ्रॉम योर बिजी स्केड्यूल इज़ नॉट एन ईजी थिंग टू डू. और कहते हैं ये भी हमें पता है कि आपके बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकालना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है. द रियल पर्पस ऑफ दिस लेटर इज़ टू इन्फॉर्म यू व्हाट योर डीड ऑफ काइंडनेस डिड फॉर अ बॉय टू whom you gave your drawing and autograph. अब वो कह रहे हैं कि इस लेटर को लिखने का मेन पर्पस है जो आपने ये काम किया, आपका जो काइंडनेस थी उसकी वजह से जो मतलब एक शाय लड़के को आपने अपना ड्राइंग और ऑटोग्राफ दिया, उससे बहुत मतलब उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एक बच्चे पे. दिस बॉय इज़ क्वाइट शाय एंड डज नॉट पार्टिसिपेट readily in class activities such as sharing his experiences before others during sharing time. तो जब शेयरिंग टाइम होता है तो वो किसी के सामने अपनी एक्सपीरियंस ही शेयर नहीं करता है और बहुत ज़्यादा शर्मीला है और किसी क्लास एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट नहीं करता है. He was so thrilled and moved by his experience that he proudly shared his experience and autograph not only with his own class but in every classroom in the school. वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, थ्रिल्ड हो गया, एक्साइटेड होना, तो ही वॉज सो हैप्पी, ही वॉज सो एक्साइटेड कि उसकी इस एक्सपीरियंस ने वो अब ये एक्सपीरियंस उसने ना कि सिर्फ अपनी क्लास में शेयर किया, बाकी इनफैक्ट हर स्कूल का जितने क्लासरूम्स में हर क्लासरूम में जाके उसने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया. द बॉय नेवर हैज़ डन सच अ थिंग. और लड़के ने आज तक ऐसा काम कुछ नहीं किया है. मैनी टाइम्स इट टेक्स जस्ट सच अ स्पार्क as this to help a youngster out of his shell and on the road to confidence. और कई बार क्या होता है कि सिर्फ एक चिंगारी की ज़रूरत होती है किसी बच्चे को उसके शेल में से, उसके जो कॉन्फिडेंस लो है उसकी जो शाइनेस है उसको बाहर निकालने के लिए और उसको कॉन्फिडेंस के पाथ पे लेके आने के लिए. यू डोंट रियलाइज़ व्हाट योर एक्ट ऑफ काइंडनेस हैज़ डन फॉर दिस चाइल्ड. आपको नहीं पता चल कि आपकी जो काइंडनेस थी, आपने ये जो काम किया उससे इस बच्चे पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है. आई रियलाइज दैट मैनी अदर पीपल सिंस देन हैव ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ द सेम अपॉर्चुनिटी एंड दिस हैज़ मेड इट डिफ़िकल्ट एंड इम्पॉसिबल फॉर यू टू फुलफिल. कहते मुझे ये भी पता चला कि तब से लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं और वो और आपके लिए भी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है उनको पूरा करना कि हर किसी को ऑटोग्राफ देना आपके लिए बहुत मुश्किल है. नन द लेस योर थॉटफुल एक्ट विल नॉट बी फॉरगेटन बाय यंगस्टर्स एंड टीचर्स अलाइक. बट आपने जो ये एक्ट ऑफ काइंडनेस की है वो ना तो यंगस्टर्स भुला पाएंगे, ना ही टीचर्स उसको भुला पाएंगे. सिंसियरली साइंड डंकन कॉलम एंड प्रिंसिपल. सो दिस वाज लेटर रिटन बाय प्रिंसिपल. So this is the third letter. In fact, this is the letter that the girl had written, and in response to that letter, this letter of the girl was written by in response of this letter was written by Einstein, that will be reading next. So dear Einstein, do scientists pray? So this letter was written by a girl, young school girl named Phyllis, who wrote a letter to Albert Einstein asking if scientists pray. Read this letter and Einstein's reply. So she had written the letter in January 1936 में she had written to Einstein और उसका नाम था Phyllis, right. उन्होंने ये पूछना था
कि साइंटिस्ट प्रे करते हैं। द रिवर साइड चर्च 19 जनवरी 1936 माई डियर डॉक्टर आइंस्टाइन. So this is the address of the girl. So it was written on 19 January 1936. So she's saying we have brought up the question, do scientists pray, in our Sunday school class. तो हमने हमारी संडे स्कूल क्लास जो लगी थी उसमें हमारा ये क्वेश्चन रेज हुआ था कि साइंटिस्ट प्रे करते हैं. इट बिकेन बाय आस्किंग वेदर वी कुड बिलीव इन बोथ साइंस एंड रिलीजन. तो शी इज सेइंग कि ये क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से यहाँ से हुआ था कि क्या हम साइंस और रिलीजन में दोनों में विश्वास रख सकते हैं साइड बाय साइड. वी आर राइटिंग टू साइंटिस्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट मैन टू ट्राई एंड हैव आवर क्वेश्चन आंसर्ड. हम अलग अलग साइंटिस्ट को लिख रहे हैं और भी इंसानों को, इम्पॉर्टेंट जो आदमी है, इंसान है, उनको भी लिख रहे हैं ताकि हमारा ये जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व किया जा सके. वी विल फील ग्रेटली ऑनर्ड इफ़ यू विल आंसर आर क्वेश्चन, डू साइंटिस्ट प्रे एंड व्हाट डू दे प्रे फॉर. तो हमें बहुत खुशी होगी अगर आप हमारे इस क्वेश्चन का आंसर दोगे. और हमारा क्वेश्चन है, डू साइंटिस्ट प्रे एंड व्हाट डू दे प्रे फॉर. क्या वो प्रे करते हैं और किस चीज़ के लिए प्रे करते हैं. We are in the 6th grade, Miss Alice class. Respectfully yours, Phyllis. So this is the class teacher's name, and she is saying she is in the 6th grade. And then she had written this letter to Dr. Einstein, and this is the reward that Einstein had given. He had written the letter on which, yeah, so he had written the letter. You can see over here. This was, she had written on 19 January 1936, and her its reward was given on 24th January 1936. Dear Phyllis, I will attempt to reply to your question as simply as I can. Here is my answer. So कि जितना easy हो सकेगा, जितना simply लिख सकता हूँ उतना मैं करूँगा. Scientists believe that every occurrence, including the affairs of human beings, is due to the laws of nature. और वो कह रही हैं कि साइंटिस्ट का क्या मानना है कि जो भी चीज़ होती है दुनिया में, एवरी अक्रेंस, वॉट एवर इज़ हैपनिंग इन द वर्ल्ड, और इंसानों का पैदा होना भी, वो क्यों है, वो नेचर का कानून की वजह से है, नेचर के कानून की वजह से है. Therefore, a scientist cannot be inclined to believe that the course of events can be influenced by prayer. तो इसलिए साइंटिस्टों का इस चीज़ की तरफ झुकाव हो ही नहीं सकता, वो इस तरफ झुक ही नहीं सकता वो विश्वास करे कि जो ज़िंदगी में हो रहा है वो प्रेयर से उस पर कोई प्रभाव पड़ेगा. ठीक है, मतलब जो भी चीज़ें हो रही हैं वो होंगी ही, क्योंकि ये नेचर का कानून है, राइट. तो वही सेइंग कि साइंटिस्ट का यही बिलीव है कि प्रेयर से उसका कुछ नहीं हो सकता. दैट इज़ बाय अ सुपर नेचुरली मैनिफेस्टेड विश. सुपर नेचुरली मीन्स कि कुछ मैजिकली होना, ठीक है. मैनिफेस्टेड मीन्स कि ऑब्वियस हो जाना, क्लियर करना. तो ये सेइंग कि ये तो मैजिकली क्लियर विश है, इसको तो हम वो कर ही नहीं सकते, प्रूव्ड विश है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, मतलब जो चीज़ होनी है वो होनी ही है. However, we must concede that our actual knowledge of these forces is imperfect. But वो कहते हैं कि हम ये भी एडमिट करते हैं, कंसीड का मतलब है एडमिट करना. तो ही इज सेइंग फर्दर, ही इज सेइंग कि बट साइंटिस्ट ये भी एडमिट करते हैं कि ये जो हमें इन चीज़ों के नॉलेज हैं वो भी इम्परफेक्ट है, मतलब कंप्लीट नहीं है. सो दैट इन द एंड द बिलीफ इन द एग्जिस्टेंस ऑफ अ फाइनल अल्टीमेट स्पिरिट्स रेस्ट ऑन अ काइंड ऑफ फेथ. क्योंकि किसी चीज़ का, आत्माओं का होना दुनिया में, वो एक तरह के फेथ पे ही डिपेंड करता है. इंसानों को होना, भगवान का होना एक तरह का फेथ ही है. सच बिलीफ रिमेन्स वाइड स्प्रेड इवन विद द करंट अचीवमेंट्स इन साइंस. और ये जो हमारा विश्वास है भगवान का होना, और मतलब एक होना चीज़ का जिस पे हम विश्वास करते हैं, और इस विश्वास को हम चाहे साइंस कितनी भी तरक्की कर ले, ये फिर भी लोगों में बना ही रहता है, फैला ही रहता है. बट ऑल्सो एवरी वन हु इज़ सीरियसली इन्वॉल्व इन द परसुएट ऑफ साइंस बिकम्स कन्विंस दैट सम स्पिरिट इज़ मैनिफेस्ट इन द लॉज ऑफ यूनिवर्स. सो ही इज सेइंग कि जो भी परसुएट होता है किसी काम में बिज़ी हो जाना, जो काम आप डेली करते हो, ठीक है, कुछ भी जो डेली होता है, आप जो काम करते हो, एवरीवन जो कि सीरियसली किसी साइंस के काम में बिज़ी होता है, डेली साइंस से रिलेटेड है,
उसका वो ये चीज़ को मान लेता है कि स्पिरिट जो है वो मैनिफेस्ट है, ठीक है, स्पिरिट है दुनिया में इन द लॉज ऑफ यूनिवर्स, और दुनिया के मतलब यूनिवर्स में ये है, स्पिरिट का होना, भगवान का होना दुनिया में सच है। वन दैट इज़ वास्टली सुपीरियर टू दैट ऑफ मैन, और वो स्पिरिट मतलब जो भगवान है वो इंसान से बहुत ज़्यादा ऊपर है, बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा सुपीरियर है। इन दिस वे द परसुएट ऑफ साइंस लीड्स टू अ रिलीजियस फीलिंग ऑफ अ स्पेशल सॉर्ट। और इस तरह से जो साइंस में काम करने वाला है, जो साइंस का काम है, साइंस में काम करने वाले लोग हैं, वो उनमें एक अलग तरह की स्पेशल तरह की फीलिंग आ जाती है, रिलीजियस फीलिंग आ जाती है, विच इज़ श्योरली क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द रिलीजियस सिस्टम फ्रॉम समवन मोर नेव, जो कि उसको ज़्यादा मानता है, जो कि बिल्कुल दूसरे जो कॉमन लोग हैं उनसे, उनकी जो रिलीजियसनेस है उससे बिल्कुल अलग है। विद कॉर्डियल ग्रीटिंग्स योर ए आइंस्टाइन। सो the last me is saying your cordial greetings your Einstein. So these were the three letters bache, those were written by famous personalities, and you can see how they have written, and they are too so up to the mark, no extra things, nothing. So this was the chapter for today. I hope you have enjoyed it and you have understood it well. If you did, please do tell me in the comments, and I'll be waiting for the comments for that coding wala also. So if you have understood, please do tell me. I'll be waiting for your comments. Thank you and have a nice day. Enjoy your day. Bye bye.